Today we will be starting the new chapter, chapter 16, Sustainable Management of Natural Resources. A very simple chapter and you can understand this very easily. Just keep listening, noting down whatever is being shown and given to you so that you may be able to do well, and also remember to read your NCERT text very carefully. Sustainable, the word sustainable, okay, what does it really mean? In our country, India, traditions and cultures are very, very rich. Okay, in Sanskrit there is a saying, Vasudev Kutumbam. What is Vasudev Kutumbam? It means that the entire earth is one family. Okay, so whatever we are benefited of from the nature, that those are the natural resources, we need to use them judiciously in a very proper way so that they are available for the future generations also. ठीक है चिल्ड्रन, हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेस मिले हैं उन्हें हमें सस्टेनेबल, उन्हें हमें बड़े जस्टिफाइड मेथड से इस्तेमाल करना है. गंगा रिवर originates from गंगोत्री and it travels towards डायमंड हार्बर. एक ग्राफ दिया हुआ है आपकी बुक में, उस ग्राफ को आप प्रॉपरली स्टडी करिएगा. उसमें जो है गंगा रिवर कहाँ से शुरू होती है और उसकी डेस्टिनी कहाँ पर है. बे ऑफ बंगाल में है, डायमंड हार्बर से बे ऑफ बंगाल में जाती है. दिस यू हैव टू नोट डाउन. ओके चिल्ड्रन. और एक बात बताई गई है कि अगर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलन में होता है वहाँ पर ये यूजफुल है, बट अगर इसका कंसंट्रेशन वाटर में बहुत ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स इट मीन्स दैट द वाटर इज हाईली पोल्यूटेड. ओके, it is a microbe that can cause diseases. ठीक है children. So contamination of water depends upon the number of coliform bacteria present in it. Ganga runs over 2,500 kilometers from Gangotri to Diamond Harbour, that's the Bay of Bengal. The states through which Ganga flows are Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. थोड़ी सी geography लग रही है आपको, but पता है क्या है, ये सब चीज़ें नोट कर लो क्योंकि हमें ही नहीं मालूम कि बोर्ड्स में किस तरह का क्वेश्चन आता है. दे मे आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम द ग्राफ, सो यू मस्ट बी नोइंग दीज थिंग्स. एंड वन इवन शॉर्ट फॉर्म इज गिवन, द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. दिस नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा was implemented around October 2016. Okay, so note down these things, these are very important. To save the environment, 5 R's have been followed. If you have the old NCERT text, there 3 R's are given, but in the new one there are 5 R's. We need to follow the new one. एक है refuse, एक है reduce, एक है reuse, एक है repurpose और एक है recycle. ठीक है, सबसे पहले है refuse. हमें no कहना है. किसके लिए? प्लास्टिक बैग्स के लिए, पॉलीथीन कवर्स के लिए, थर्मोकोल शीट्स के लिए, थर्मोकोल बॉल्स के लिए, क्योंकि ये पोल्यूटिंग है और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हज़ार्डस है. तो हमें ऐसी चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें इन्हें रिफ्यूज़ करना चाहिए. ठीक है, वी शुड यूज़ क्लॉथ बैग्स. Nowadays we people have started using, there is a drastic change in the society and it should carry on. Okay, reduce, it means that you use less. Whatever sources we are having, like water is there, like electricity is there, like fuel is there, coal or petroleum, petrol, diesel, they must be saved. They must not be used in excess, irrelevantly, wherever it is not required. हमें उनको यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो हम यहाँ पर रिड्यूस करते हैं उनका यूटिलाइजेशन. रीयूज़ का मतलब है हम अपने घर में ही जो वेस्ट आर्टिकल्स हैं हम उनको रीयूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई बॉटल आती है, आपके पास जैम की बॉटल है, ठीक है, जेली की बॉटल है, तो हम उस पर कुछ स्टोर कर सकते हैं. अगर हमारे घर में कोई प्लास्टिक का, कोई मिठाई का डब्बा आ जाता है तो वी कैन यूज़ इट फॉर स्टोरिंग सम इरेजर्स, सम पेंसिल्स, सम पेन्स और समथिंग एल्स. छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपका स्टेपलर पिन्स का ही बॉक्स बन जाए, कोई भी ऐसी एक चीज़ है जो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. प्लास्टिक बॉटल्स और सम glass bottles can be used in the kitchen for storing some items. So they must be reused other than simply throwing them as waste. Repurpose. Now using things in a very proper way, है ना, in a very you can say in a very creative way is repurpose. Creative utilization.
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सुंदर सा आपके पास मग है और उसका हैंडल टूट जाता है, तो आपका मन भी नहीं करेगा फेंकने को, आप उसको डेकोरेट कर कर एक फ्लावर पॉट बना सकते हैं, उसमें आप एक छोटा सा प्लांट पॉट कर सकते हैं, है ना। तो क्रैक्ड क्रॉकरी कप्स with broken handles can be used for growing small plants. This is one. तो we have given it a purpose, है ना, उस पौधे के लिए एक पर्पस हो गया, हमने उस मग को यूज़ किया, तो दैट्स अ काइंड ऑफ पर्पस. डेकोरेटिंग यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स, दैट इज बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, रीना मैम आपको सिखाती हैं, दैट्स हाउ इट इज. Recycle. This means that you collect plastic, paper, glass and metal items and recycle these materials to form new products. ये तो वही है कि कबाड़ी वाले को हम अपने घर का वेस्ट देते हैं. अब इसमें आप ग्लास अलग सेग्रीगेट कर लो, आप यू कैन से ब्रोकन प्लास्टिक्स अलग कर दो, अपना जो नॉर्मल रूटीन में जो हम कूड़ा फेंकते हैं या बाहर देते हैं उसको, उसमें ये चीज़ें ना डाल के उसको हम सेग्रीगेट कर कर रखें और बाद में इसको कबाड़ी वाले को दें ताकि वो इसे रिसाइकलिंग के लिए भेज सके और फिर उसको रिसाइकल करके हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ रिसाइकलिंग इज कैरीड आउट. द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट encourages forms of growth that meet current basic human needs while preserving the resources for the needs of the future generations. ओके, सो ये 5 R's का कंसेप्ट, आई होप इट इज़ क्लियर. ये 5 R's हैं: रेफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस और रिसाइकल. ओके चिल्ड्रन, पॉइंट अब ये है कि ये हमें जस्टिफाइडली यूज़ क्यों करने हैं रिसोर्सेस, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, ये सॉरी नॉट अनलिमिटेड है, ये बहुत लिमिटेड है. और ये सारी की सारी चीज़ें रिसाइकल हों या मतलब फिर से मिले हमें, ये ज़रूरी नहीं है. विद द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट अ ट्रेमेंडस रेट, एन अलार्मिंग रेट में ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो और जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो एक लेवल तक हैं, ठीक है. उनका डिमांड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन एन एक्सपोनेंशियल रेट. दिस शोज दैट वी शुड यूज़ दैम इन अ very judicious way so that these limited resources can be used by the future coming generations also. Okay children, I'll continue with the video tomorrow. Until then, take care.